I welcome you today's class. I welcome all the learners because number is very few because around 201 students are present. But I Oh, don't know why students are not coming. So, but I do feel definitely will enjoy with ma'am class. Ma'am is such an excellent teacher and she present this facts content so nicely. I am really happy with ma'am. She's an excellent teacher. Thank you very much, ma'am, for your thank you. presentation. So I hand over the session to you. You start your class, ma'am. Thank you so much, sir. So, is it visible to you all? आप लोग को दिख रहा है PPT? यस मैम दिख रहा है. अच्छा अच्छा. So I'll start my PPT now. So as you can see in the picture, yesterday we started with self-development. Self-development में हम लोग पढ़े हैं ego states. What type of ego states are there? Parent ego state, child ego state, and adult ego state. What is transactional analysis? And what type of transactions are there? Leaders, because you all are leaders. सब कोई अपने अपने जगह में leader है. अपने क्लास में तो और कोई बताने वाला नहीं है आपके सिवाय. So leaders, how many types of leadership styles are there, and what type of leadership can be taken by you all in the class? शायद ये सब कुछ समझ गए होंगे. And today I will go with a new topic. Like today the topic will be into some other type of professionalism. हम लोग सब अपने अपने प्रोफेशन में है, लेकिन हमारे प्रोफेशन में हम लोग क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं. So this is what another session for you all. So आप लोग को अगर कहीं दिख नहीं रहा है, then kindly tell. Slide move हो रहा है. Can you see the slides moving? यस मैम. Okay, thank you. Yes, ma'am. So here, Yes, ma'am. okay, thank you so much. So as you know, there are two types of understanding. One is understanding the self and again managing the self. So understanding में हम लोग को पता चल गया, जैसे I was telling in the beginning, interpersonal processes और leadership styles हम लोग को already खत्म हो गया. So now we will go for developing professional values and ethics. सब प्रोफेशन में वैल्यूज और एथिक्स माना जाता है. इवन टीचिंग एज ए प्रोफेशन देयर इज ऑलवेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन इट. सो नाउ इन दिस unit 3, now as we all know, as I was telling, every profession has its values, ethics, responsibilities, and so also is in a teaching profession. टीचिंग में भी ज़्यादातर एथिकल स्टैंडर्ड होता है, इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड होता है, और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है मोरल स्टैंडर्ड. तो इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट व्हाट टाइप ऑफ concepts, professional concepts are there or professional values are there for a teacher. जैसे कि dignity, एक टीचर का रहना चाहिए, truthfulness, fairness, and responsibility towards your own profession. Now, analyze the ethical issues related to the teaching profession with real life example हम देंगे. अगर आप कोई देना चाहते वो भी, you are welcome. So, deal with moral dilemma in teaching profession. Then internalize the concept of pluralism, क्या होता है, और pluralism classroom में कैसे support कर सकते हैं वो भी बताएंगे. Then we will discuss about the ethical relationships between teachers and learners, that means teachers and student. अपने colleagues में और parents के साथ किस तरह का ethical relationship रखना चाहिए. And as a whole, the stakeholders as well as the community जहाँ पर आप लोग हो, तो वहाँ पर किस तरह का ethical relationship हम लोग को maintain करना है. तो इसमें जैसे कि
ये बताए हैं एथिकल प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिकल प्रैक्टिसेस मेन महत्व रखता है यूनिट 3 में। तो पहले अगर प्रोफेशनल वैल्यू में जाए तो डिग्निटी आता है। सबका एक एक डिग्निटी होता है, सबका एक एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, सबका इम्पोर्टेंस होता है। तो ये होता है डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स द वर्थ and rights of someone or a position they deserve without any discrimination. चाहे जूनियर टीचर हो या सीनियर टीचर हो या एचओडी हो या प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, जो भी जिस जगह में है, सबका एक एक डिग्निटी प्रोफेशनलिज्म में होना चाहिए। तो डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादातर कंफ्यूजन पैदा कर देता है। डिग्निटी इज इनबॉर्न, ये प्रोफेशन में हम आए मतलब हमारा डिग्निटी है ही है, लेकिन रेस्पेक्ट हम लोगों को अपनाना है हमारे काम से। लाइक इट इज अर्नड, द वर्थ एंड राइट्स ऑफ समवन और अ पोजीशन दे डिजर्व आफ्टर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। अगर हम कुछ काम करते हैं, हमारे काम के हिसाब से हम लोग को रेस्पेक्ट दिया जाता है। तो ज्यादातर इफ वी सी डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, there is a difference between these two concepts. Now, dignity is a multi-level concept, and in a school organization, it can be seen at various hierarchical levels, जैसे कि administration और teacher level में dignity कैसे रखना है, teacher student level में, and among the colleagues or teachers. तो dignity is one of the major component in the professional value. तो हम अगर डिग्निटी के साथ चलेंगे, हाँ, रेस्पेक्ट हम लोग को मिल सकता है अपने काम के हिसाब से। देन आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एज आई सेड, एक एक का एक एक एग्जांपल भी है। टीचर्स मस्ट मेंटेन डिग्निटी अमंग कोलीग्स बाय शोइंग ए मिनिमम लेवल ऑफ रेस्पेक्ट। वो तो होना चाहिए अपने कोलीग्स में, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, चाहे अपने से पटता है कि नहीं, वॉट एवर इट इज, a minimum level of respect, because you all are leaders, and this is what the students are going to learn from you all. Now, talking of dignity, the teaching profession treats every teacher, student and other stakeholders equally. सबको एक जैसा ही देखा जाता है, and a class consists of students from various and diverse backgrounds. कल्चर बोलिए, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, हर किस्म का अलग अलग लोग रहते हैं क्लास में, एंड टीचर को वहाँ पर कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। सो दैट इज वेयर द डिग्निटी कैन स्टैंड, एंड अपने आप टीचर को रेस्पेक्ट मिल जाएगा। सो डिग्निटी स्टैंड्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनीवन इन द कैंपस और वेरेवर यू आर लोकेटेड। ट्रूथफुलनेस, ये वर्ड से ही पता चल जाता है, ऑनेस्टी, ट्रूथफुल, तो ये सिंसियरिटी एक टीचर को होना चाहिए, और ये एक क्वालिटी भी होना चाहिए एक टीचिंग प्रोफेशन में, which is a very high priority given to this profession. Like a truthful person does not deviate in his or her action, और words, thoughts, actions जो भी बोले, वो टीचर हो या कुछ भी प्रोफेशन में हो, अगर ऑनेस्टी, सिंसियरिटी एंड ट्रूथफुल ये सब है, तो अपने काम में पीछे नहीं हट सकते। सो ट्रूथफुलनेस इज अवॉइडिंग मैनिपुलेशन। हम लोग मैनिपुलेट नहीं करते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें आता है वही इंफॉर्मेशन हमें जिसको पास करना है हम पास कर देते हैं। सो द टीचर्स शुड ऑलवेज रिमेन ट्रूथफुल टुवर्ड्स देयर प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्जरी इन डॉक्यूमेंटेशन, ज़्यादातर बोला जाता है कि हमारा सर्टिफिकेट हो या ना हो, लेकिन हम सर्टिफिकेट बना के आ जाते हैं किसी प्रोफेशन में। सो वंस यू आर कॉट, द डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट गोज ऑफ। जैसे कि रॉन्ग कमिटमेंट, हम कमिट करते हैं कि हम ये करेंगे लेकिन नहीं कर पाते हैं, या गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन और मिसकम्युनिकेशन पैदा कर देते हैं, this is to be avoided in a teaching profession. जैसे कि a teacher, as a teacher teaching in a classroom and one of your students ask you a question. भले ही आपको पता ना हो, in
ए ट्रूथफुल टीचर वी कैन सी कि हम लोग कल इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसे अगर आपको लगता है कि नहीं बताना है बच्चों को कि हमें नहीं पता, तो आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है ये टॉपिक तो अच्छा टॉपिक आप बोले, क्यों इस पर सबको बोलते हैं ध्यान लगाकर तुम लोग सब पढ़ के आओ, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट्स। अगर ऐसा लगे कि हम लोग का सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाता है, हम भी ऐसे टीचरशिप में ऐसे बताएं कि अच्छा ऐसे तो ये टॉपिक, एक तो स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, और ये भी दूसरे तरफ से आप बताएंगे तो बच्चे खराब नहीं सोचेंगे, सोचेंगे हाँ टीचर्स हमारे वैल्यू देते हैं और टीचर्स ज़्यादातर हम लोग को अपडेट करवाते हैं। हम लोग को अगर कुछ भी मुश्किल है समझाने के लिए कि कुछ, टीचर्स आर एक्सेप्टिंग इट। सो ट्रूथफुल के साथ आप लोग चलेंगे तो obviously the students will be respecting you for that truthful, and they will also be truthful to you. You will act as a role model. तो फेयरनेस जस्टिस ये तो सबको चाहिए, अगर ये उसके साथ होता है तो मेरे साथ क्यों नहीं। तो फेयरनेस इज ए वर्च्यू that connects with you and your profession and the people around you. किसी को प्रमोशन मिलता है तो ये प्रमोशन फेयरनेस जस्टिस के साथ होना चाहिए विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो योर फेयर बिहेवियर अगर आप भी बताते हैं स्टूडेंट्स को, ऐसे हम एग्जांपल देंगे इसका, तो देन यू विल क्रिएट ए वेरी गुड एनवायरनमेंट। हम इसको ये मार्क्स दिए और दूसरों को नहीं दिए, तो आप अगर एक्सप्लेन करेंगे कि ये लिखा और तू नहीं लिखा इसलिए तुझे नहीं मिला है, तो ये आपका बात हम लोग सुनेंगे और दूसरा एग्जाम में लिखने का कोशिश भी करेंगे। तो ऐसा लिखने से तुझे ऐसा मार्क मिलेगा। सो दैट इज व्हाट फेयरनेस। अगर कोई बोलता है कि तू तो लिखता ही नहीं है, तुझे क्या मार्क दें, तो ये दूसरा तरह का आप इनजस्टिस दे सकते हैं। बीइंग फेयर इन योर वर्क विल मेक यू स्टैंड आउट अमॉन्ग योर कोलीग्स। सो इवन इन द ग्रुप, इन द डिपार्टमेंट, आप अगर जस्टिस के साथ काम करते हैं, देन यू विल बी रियली respected to that extreme. Students will feel free to ask or take advice from you. जैसे कि हम कल बोले हैं एक एग्जाम्पल जहाँ पर एक साइकियाट्रिस्ट अपने टीचर को भूले तक नहीं, एक नाम से पता चल गया कि हो सकता है वो हमारे टीचर हो, और उनको दवाई के बिना वो ठीक करवाए। So that is what teacher-student relationship should be. That is a fair justice relation. अच्छा, बीइंग फेयर एंड ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, वो दोनों दो कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि ट्रीटिंग इक्वली रिफर्स टू प्रोवाइडिंग ए सिमिलर प्लेटफॉर्म फॉर एवरी स्टूडेंट इवन दो एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। भले ही सबको एक जैसा इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन ट्रीटिंग इक्वली मतलब कोई अगर बहुत जेन्युइन, मतलब बहुत गिफ्टेड स्टूडेंट है और समझदार है और कोई समझ नहीं सकता है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ये तो नहीं हो सकता है हर जगह। तो बीइंग फेयर मीन्स जिसको जैसे चाहिए वैसे उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल में, यू आर इन चार्ज ऑफ द वाइवर्स एग्जामिनेशन and you are asking questions to every student in the class, or during the examination you know that a student lives nearby or is indirectly related to you, so therefore you ask comparatively easy questions to the particular student to make his score better than other students. So in this scenario you are giving extra weightage to that student and not treating everyone equally. तो यहाँ पर आप सबको एक जैसा नहीं देते हैं, यहाँ पर सबको एक जैसा तो देना चाहिए। जैसे कि हम बोले अलग अलग सिचुएशन सर्कमस्टेंस में अलग अलग किस्म का दिखाई देता है। समटाइम्स ट्रीटिंग इक्वली इज नीडेड व्हेन इट इज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, or when you are teaching in the class, being fair is very important. So it differs between कहाँ किस सिचुएशन में आपको कैसा उपयोग करना है।
तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, भले वो टीचर हो या हम लोगों के जैसे साइकोलॉजिस्ट हो या कोई डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, जो भी हो सबका एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता ही है. So in this you have to perform your duties with the responsibilities given to you or assigned to you, or executing powers to complete a task within a given time. जैसे कि कल हम बोल रहे थे कोऑर्डिनेटर क्वेश्चन सेट करने बोले कुछ टीचर्स को, सब कोई दिए लेकिन दोनों नहीं दिए. So they are not showing any type of responsibility towards their profession or work. जैसे कि you are a class teacher and you found out a student who is not attentive in your classroom for a few days. What would you do? एक responsible teacher के हिसाब से आपको दिख रहा है कि एक स्टूडेंट ठीक तरह से अटेंशन नहीं दे सकता है, तो आप कैसे क्या करेंगे? यू माइट हैव मल्टीपल ऑप्शंस, कुछ भी आपके हाथ में है, जैसे कि जस्ट आस्क हिम टू बी अटेंटिव. अच्छा, आप अटेंड नहीं कर सकते, अटेंशन नहीं दे सकते हो, आप थोड़ा अटेंशन दो क्लास में, ये भी बोल सकते हैं. और इफ यू आर एक्टिंग लाइक ए क्रिटिकल कंट्रोलिंग पेरेंट, यू विल पनिश द स्टूडेंट, खड़े हो जाओ, तुम्हारा अटेंशन ठीक से नहीं हो रहा है क्लास में, ये भी हो सकता है. तो बाय ऑप्टिंग फॉर एनी दिस ऑप्शंस यू मे बी सक्सेसफुल इन मेकिंग हर फोकस. हो सकता है आप बच्चा को फोकस में ला सकते हैं, लेकिन ये क्या सही है? इतना ही काफी है? ये क्वेश्चन आता है आप अगर ऐसा ट्रीट किए तो. लेकिन as a responsible teacher you should personally talk to the student and find out what is wrong with him or her. ज्यादातर आजकल देखा जाता है कि अगर स्टूडेंट को सबके सामने डांटा जाता है या कुछ पनिशमेंट दिया जाता है, स्टूडेंट को मेंटली वीकनेस चला आता है, तो वो सोचने लगता है कि या वो सोचे या ना सोचे, बाकी लोग उसको टारगेट में ले लेते हैं कि तुझे ऐसा सर बोले या मैडम बोले, तो इट इज गिविंग ए रॉन्ग पिक्चर. तो वहां पर क्लास के बाद बच्चा को पूछ के बुला के पूछना है कि तुझे कुछ मुश्किल है क्या, तू ऐसा अटेंशन क्यों नहीं दे सकता. दैट विल बी अ रेस्पॉन्सिबल टीचर वेयर द स्टूडेंट विल रियली रेस्पेक्ट यू रादर देन द टीचर सबके सामने डांटना. Oh, this is what also makes a difference with a responsible teacher. Responsibility comes through consistent and persistent efforts and remaining loyal to your duties. हमें देखना है कि बच्चे समझते हैं कि नहीं. तो समझना मतलब कि सबको ही अटेंशन दे सकता है ये भी नहीं. किसी के घर में कुछ मुश्किलें हो गया तो वो स्कूल में क्लास में अटेंशन नहीं दे सकते, वही सोचते रहेंगे. तो ज्यादातर हम लोग अगर बेहतर उसको मोटिवेट करें क्लास के बाद या पूछें कि तेरा कुछ मुश्किलें हो गया क्या, मुश्किलें कुछ हम हल कर सकते हैं क्या. सो देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन अ रेस्पॉन्सिबल टीचर एंड एन इररेस्पॉन्सिबल टीचर. तो ये अलग है. वेल, प्रैक्टिसिंग प्लूरलिज्म होता क्या है? तो pluralism is a concept, is a process where all type of diverse cultural backgrounds, बोलो कि religions बोलो कि दूसरा कास्ट बोलो, ये लैंग्वेज बोलिए, सब कोई एक साथ होते हैं. किया जाए, एक जैसे यूनिट में लाया जाए या एक जैसे ऐसे होल देखा जाए, तो दैट इज वेयर वी प्रैक्टिस प्लूरलिज्म. So it is quite natural to have ideological issues और conflicts हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं.
इवन एक घर में जब कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तो क्लासरूम या स्कूल में जबकि इतने लोग हैं, भिन्न भिन्न जगह से हैं, तो वो तो होगा ही। लेकिन एक pluralistic classroom could be a classroom in which students of various castes and religion are to learn by accepting and respecting each other। ये हमें बच्चों को सिखाना है कि कॉन्फ्लिक्ट भले ही हो, लेकिन उसमें आप दूसरों को कैसे रेस्पेक्ट दे सकते हैं। टू टेल सॉरी, आजकल के युग में जिस जनरेशन स्टूडेंट्स को सॉरी बोलना भी नहीं आता है, तो बहुत कम स्टूडेंट्स है जहाँ की हम देखें कि गलती कर दी और सॉरी बोलते हैं। लेकिन ये हम लोग अगर सिखाने लगे बच्चों को, देन इट विल बी रियली अ वेरी गुड पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज दे आर आवर फ्यूचर सिटीजन्स। प्लूरलिज्म कुड बी एक्सप्लेन्ड एज अ बॉल ऑफ सैलड। जैसे कि सैलड में कितने किस्म का रहता है, कैरेट रहता है, कुकुम्बर रहता है, और कि ये सब दूसरा दूसरा ऑनियंस रहता है, दूसरा दूसरा चीज सब रहता है, लेकिन एक बॉल के अंदर ही तो रहता है। तो वैसे ही एक क्लास में बोलिए या एक स्कूल में बोलिए, हर किस्म का लोग रहते हैं, हर किस्म का फैमिली से आने वाले लोग रहते हैं। तो किसी के फैमिली में पेरेंट्स दोनों काम कर रहे हैं, किसी के फैमिली में कोई एक काम कर रहे हैं, किसी के फैमिली में सिंगल पेरेंट होते हैं, हर किस्म के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर हम लोग अगर सही एक जैसा माहौल पैदा कर देते हैं, दैट इट विल बी रियली गुड फॉर एवरीवन। सो वी नीड टू प्रैक्टिस प्लूरलिज्म। अच्छा, प्रैक्टिसिंग के लिए क्या क्या हम लोगों को अपनाना है? व्हाट आर द मेजर्स वी शुड टेक इन ए क्लासरूम? Policy makers should make policies that foster inclusion and pluralism। कुछ भी पॉलिसी हो, एक कंपटीशन हो या कभी ऐसे हो या ड्रामा हो या क्विज हो या कुछ भी हो, हम लोग को देखना है कि सबको इंक्लूड करना है, सब हिसाब से रखना है। एंड एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन भी इंक्लूड करना है करिकुलम में, जो कि मोरल साइंस हम लोग भी पढ़े थे, हो सकता है अभी भी पढ़ाई हो रहा है। तो मोरल साइंस, मोरालिटी, मोरल स्टैंडर्ड अपनाना है किसी भी पॉलिसी अगर हो तो। ए टीचर शुड बी प्रोफेशनली ओरिएंटेड टू प्रैक्टिस प्लूरलिज्म विदाउट रेजिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट। टीचर के होते हुए कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता, तो ये भी ध्यान रखना है। So community participation should be increased while ensuring that this participation does not disturb academic activity। तो आप लोग का हाउसेस है, हाउस कंपटीशन हो सकता है, या क्लास बाय क्लास कंपटीशन हो सकता है, या विद इन द क्लास कंपटीशन हो सकता है, लेकिन जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब में वो देखना है कि भले कोई जीते या हारे, ये तो रहेगा ही, लेकिन देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टर्बेंस इन द एकेडमिक एक्टिविटीज। किसी को गुस्सा से किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। ये तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को दिख रहा है कि अगर हम हार जाते हैं तो उसको देख लेंगे। तो ऐसा टीचर को देखना है कि दे शुड बी ऑल्सो ट्रेंड कि ये मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है कि प्लूरलिज्म प्रैक्टिस किया जाए हर जगह। So teachers should set examples of respecting others। तो हम लोग अगर रेस्पेक्ट करते हैं दूसरों को, obviously they will respect us। It's not that a teacher is only respecting another teacher। A teacher can also respect another student to give a role model कि जब टीचर हमें रेस्पेक्ट से बात कर सकते हैं, हम क्यों नहीं? That will be a turning fact। Teachers may use some reinforcement strategy to promote inclusion। जैसे कि कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसको वाहवाह देना है, उसको encourage करना है, उसको मोटिवेट करना है। तो किसी स्टूडेंट को अगर दिख रहा है कि हाँ वो अच्छा काम कर रहा है, तो टीचर उसे अच्छे बोल रहे हैं, तो हम भी कुछ अच्छा काम करके दिखाते हैं, तो टीचर हमें भी कुछ अप्रिशिएट, मोटिवेशन करेंगे। So this is where practicing pluralism is very very important in all the education institution, क्योंकि वहीं से उन लोग एजुकेट होते हैं, वहीं से सब कुछ सीखने को मिलता है कि हम लोग कैसे बने द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री।
So while teaching, a teacher should include examples in such a manner that every student can relate to them and does not feel marginalized. कुछ भी एग्जाम्पल अगर टीचर देते हैं तो स्टूडेंट्स को वहाँ पर कुछ कंफ्लिक्ट जैसा फील ना हो, एंड it should not be sensitive too much to the society. तो ऐसा कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए, टीचर को देना चाहिए इस क्लासरूम में, सो दैट द स्टूडेंट्स आर वेरी मच इनटू इट. कुछ सीखने का है, मोरल स्टैंडर्ड का के बारे में बता रहे हैं. तो ट्राई टू यूज ए कॉमन लैंग्वेज. तो आप लोगों के बीच में तो यू हैव आस्क्ड मी टू स्पीक इन हिंदी, सो आई एम स्पीकिंग इन हिंदी समटाइम्स, बट कॉमन लैंग्वेज सबके हो तो अच्छा ही है. दैट विल बी फाइन. So moreover, you all are going to write in English. So I am not quitting English. I am also including English along with the Hindi explanation. So use technologies to bring clarity and transparency to the teaching learning process. जैसे कि ये टेक्नोलॉजी एक है, हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जहाँ कि आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या प्रेजेंटेशन है. इट इज़ वेरी मच ट्रांसपेरेंसी. और हम जैसे जैसे प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, लाइक स्लाइड्स आर मूविंग, यू ऑल कैन सी इट्स वेरी मच ट्रांसपेरेंट, वेयर द स्टूडेंट टीचर रिलेशन कैन बी ग्रोन. Organize and participate in workshops regularly to polish your skills and to promote inclusion within the classroom. ऐसा नहीं कि only students have to learn, students have to update, teachers लोगों को भी update होना चाहिए. जैसे कि ये update हो रहा है, तो आप लोग बहुत किस्म का देखे हैं स्टूडेंट्स, बट some type of updation should be like this, should be type of FDPs, जैसे कि टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकता है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हर जगह होता भी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में. तो दूसरा किस्म का वर्कशॉप भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं जहाँ की आप लोग एबिलिटीज और स्किल्स में प्रमोशन हो सके. So teaching is an art as well as science. We don't say that it is only an art. ये दो किस्म का होता है teaching. So practicing pluralism within the classroom is an art. And the way a teacher implements and inculcates pluralism within the students could be considered as science. तो आर्ट हम में होता है, हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं खुद, और प्रैक्टिस करके हम कैसे इम्प्लीमेंट बच्चों पर करते हैं, वो होगा साइंस. क्योंकि साइंस गोज विथ ऑलवेज एक्सपेरिमेंट, और बच्चे ठीक से कर रहे हैं कि नहीं वो हम लोग को दिखेगा, और इसी से हम लोग का टीचिंग इज डिस्क्राइब्ड एज बोथ साइंस एंड एज वेल एज आर्ट. So I will just take a pause of asking, am I audible and visible? Yes, madam. या कल के जैसा नहीं होना चाहिए, बीच में अटक गए. सो थैंक यू. स्लाइड्स भी मूव हो रहा है तो आप लोग को सबको दिख रहा है ना? जी 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 मैडम. थैंक यू. क्योंकि ना हम आपको देख सकते हैं, आप लोग तो मुझे देख ही सकते हैं. तो इस सिचुएशन में थोड़ा थोड़ा तो इम्प्लीमेंट करना है. एनी हाउ. यस मैम. ओके, थैंक यू. सो प्रोफेशनलिज्म के बारे में तो हम लोग देखे क्या क्या डेवलप करना है, लेकिन एथिकल प्रैक्टिसेस लाइक मोरल स्टैंडर्ड्स हम लोग को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है, वेयर टू यूज और इम्प्लीमेंट एथिकल प्रैक्टिसेस. तो दिस इज राइट, दैट इज रॉन्ग, वी टीच द स्टूडेंट्स, but what is wrong and right with the teacher we need to learn. So first is moral dilemma, misunderstanding or something what is there. In a teacher's life, a dilemma could be understood as a situation where one has to make a forced choice whether he or she likes it or not. तभी dilemma हो सकता है, तभी problem हो सकता है. तो I have joined as a teacher. It is a choice basis or forced basis. मेरा choice था ये
इंटरेस्ट चॉइस था या फोर्स चॉइस। तो ये होता है डिलेमा हम लोगों में पैदा हो जाता है। नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट डज ही और शी डू? अगर फोर्स्ड अगर हो तो as a teacher you might have confronted numerous circumstances with making decisions using your moral judgment, and in a dilemmatic situation this judgment may help to conclude your decision. moral judgment अगर आप लोग ले तो हर तरह का डिसीजन लेने में आपको मदद हो सकता है। सो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। ये मोरल डिलेमा में किस तरह का एग्जांपल हो सकता है। You are sitting in a classroom and outside you hear two of your colleagues talking about the superior authority. ये ज़्यादातर होता ही है हर जगह। अगर मुझे पसंद नहीं वो एचओडी है या वाइस प्रिंसिपल है या जो भी है या सीनियर टीचर है, हम लोग तो बात करते ही हैं पीठ पीछे। तो एक टीचर को सुनाई दिया कि दो टीचर ऐसे बात कर रहे हैं किसी के अगेंस्ट में। सो द कन्वर्सेशन बिटवीन योर कोलीग्स वाज नॉट पॉजिटिव। सही बात नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली आहिस्ते से बात करेंगे तो सही बात तो नहीं लगेगा, क्योंकि उन लोग नहीं चाहेंगे कि बाकी लोग सुने। सो एंड इवन seemed like a conspiracy against your superior authority। कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। Now what would you do? आप उस जगह में होते तो क्या करते? So if you go and tell the authorities, you may get a promotion, but your colleagues may lose their jobs. आप लोगों को ठीक से पता है वो दोनों कौन है, और आप अगर बता देते हैं तो आपको तो ठीक रहेगा, लेकिन उन लोगों को ठीक नहीं रहेगा। It depends upon the situation again. So the moral dilemma is that you cannot let this conspiracy grow in your institution. आप moral standard follow करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता कोई किसी के बारे में ऐसा बात करे तो। So at the same time, you also don't want your colleagues to get fired from their job because they are brilliant teachers. तो बहुत अच्छे सीनियर टीचर है, आप नहीं चाहते कि उन लोग जाए। तो इस जगह पे आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर ये आप पर छोड़ देते हैं, क्योंकि मोरल डिलेमा, मोरल स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप उस पे अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके आप खुद गिल्ट फील करेंगे तो ये अलग है। लेकिन आप अगर देखते हैं ठीक है मैं अपने जगह में ठीक हूँ, वो भी अलग है। तो सिचुएशन के हिसाब से आप लोग को जजमेंट लेना है। एथिकल रिलेशनशिप विद द प्रोफेशन। तो आप जिस काम करने आए हैं उस पर क्या मोरल स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं अपने प्रोफेशन में? प्रोफेशनल एथिक्स डिमांड इक्विलिब्रियम बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, जो कि हम लोग स्कूल कैंपस में करते हैं, देखते हैं, पढ़ाते हैं। जो भी हो वो हम घर में नहीं ले सकते। That is what our profession is. Then only we will be having a very good lifestyle. जैसे कि हम बताएं कि हम एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं और आई एम डीलिंग विथ मैनी केसेस बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, केस नेगेटिव बहुत सारा बताते हैं कि हम ऐसे कैसे डील करें, हमारे रिलेशनशिप में ऐसा है कि हमारे फैमिली में ऐसा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे डिग्री अच्छा कंटिन्यू नहीं करना है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच मे टेक प्लेस। नाउ इन दिस थिंग आई टेक ऑलमोस्ट ऑल द नेगेटिव थिंग्स। तो वहाँ पर जो भी नेगेटिव हो रहा है तो हम घर में लाने लगे तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन मी। सो आई कैनॉट bring a balance between my professional relationship with the family. So it defines your work frame, do's and don'ts. आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, and the extent to which you comply with its norms and regulations. तो सबका अलग अलग नॉर्म्स रेगुलेशंस होता है। इस पर कोई कुछ एक जैसा नॉर्म्स रेगुलेशन नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि
अलग अलग सिचुएशन में सब कोई है। तो हो सकते हैं कोई किसी क्लास पढ़ाते हैं तो कोई और किसी क्लास पढ़ाते होंगे, एंड किसी के घर में कुछ मुश्किलें हो तो कोई किसी के घर में ना भी हो सकता है। सो दैट इज ऑलवेज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप यू हैव टू मेंटेन। Another thing is, teaching professionals are expected to project themselves as role models. आप जैसे बिहेव करेंगे, आपके स्टूडेंट्स आपको ही फॉलो करेंगे। बिकॉज जैसे कि बच्चे नर्सरी से जाते हैं, एलकेजी, यूकेजी, 1, 2, 3 जो भी हो, उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी टीचर्स होते हैं। तो टीचर जब कुछ पढ़ाते हैं, तभी अगर पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं ये गलत है, तो उन लोग कभी नहीं मानेंगे कि गलत है। हमारे टीचर जो बोले हैं वो सही है। सो दिस इज व्हाट अ रोल मॉडल of a teacher with the student is. Now, it is an art how you as a teacher merge your professional values with personal values to maintain professionalism. तो अगर आप घर का बात का इरिटेशन क्लास में भी लाने लगे तो वहाँ पर बच्चे आपसे खुश नहीं रहेंगे। So there is always a balance which needs to be created in between the professional life and the family life. So this is what ethical relationship with the profession means. You should be a professional person when you are in the working atmosphere. So as a teaching profession, you should know your boundaries in a profession. For instance, जैसे कि to what extent you should get involved in a student's personal life and how much time you should give to your work and students. तो बच्चों को जब पढ़ाते हैं, अगर कोई बच्चे समझ नहीं रहा है तो उनको तो एक्स्ट्रा क्लास होता ही है, लेकिन एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा क्लास देना भी ठीक नहीं है। So that is what the professional life of the teachers to be maintained. जैसे कि एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, you are a teacher in a senior secondary school. You explained a chapter and instructed your students in the classroom on whatever was needed. Then one of your students called you at home late in the night to clear his or her doubts. It may look normal to answer the call 1 or 2 times, but if it becomes a regular practice, what should you do? Would your professional ethics allow it? तो ये तो सही बात है, एक आध बार आप ठीक है बच्चों को लेट नाइट तो ज़्यादातर नहीं होना चाहिए। तो अगर बच्चा अगर कुछ भी हो, ठीक है हम कल देख लेते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, ये तो बता देना सही होगा। लेकिन टीचर अगर उसका वैल्यू लेट नाइट हो, कभी भी कॉल करे तो उसको encourage करें, तो एज ए टीचर दिस इज नॉट द प्रोफेशनल लाइफ दैट ही इज मेंटेनिंग। तो इसमें बहुत किस्म का मुश्किलें पैदा हो सकता है। ओके, नाउ एथिकल रिलेशनशिप विद द लर्नर्स, विद द स्टूडेंट्स। तो किस तरह का एथिकल रिलेशनशिप आपको लेना है विद द स्टूडेंट्स? नाउ योर रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट should be a teacher-student relationship. As a teaching professional, you may confront numerous situations where you would have to abide by your professionalism and ethics, जैसे कि हम पिछला ethical relationship, professional relationship में बताए। कहीं भी बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है, ऐसा भी बच्चे बोल सकते हैं कि मैं गया था लेकिन टीचर मुझे आंसर नहीं किए। So in this case, how you are going to handle this on ethical ground? It would be best if you maintain an unbiased and prejudice-free rapport with your student. Unbiased मतलब कि एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस और बाकी को नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सॉरी, बायस नहीं होना चाहिए। Unbiased and prejudice-free rapport. कुछ सोच के हम रैपो नहीं बिल्डअप करते हैं। प्री जजमेंट जो कि प्रेजुडिस है, हम लोग कुछ सोच के बच्चों से बात नहीं करते हैं कि बच्चों को हेल्प नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो
ऐसे ऐसे कुछ अगर टीचर है कि एक आध लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं और बाकी को नहीं, so then they are not following the ethical relationship towards students. They should not be having any bias factors. Now you would have to keep some criteria or boundary lines to preserve dignity and professionalism. जबकि हम क्लास में पढ़ाते हैं, अगर क्लास में नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, बस उतना. Yeah, there are teachers who take tuitions and all, so it is a different category. I will not comment to that. So इस तरह का हम लोग को प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है विद अ बाउंड्री. सो इफ यू डोंट मेंटेन अ बाउंड्री, हो सकता है कभी भी स्टूडेंट्स टीचर का फायदा ले सकते हैं. सो दैट बिकम्स अनदर क्रिटिकल एरिया फॉर द टीचर्स टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड कि आप सही है या गलत है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेंटेन विद द स्टूडेंट्स. तो somehow somewhere we see the ethical relationship with colleagues में जेलस फीलिंग होता है, सेल्फिशनेस दिखता है. कोई अगर एक ही सब्जेक्ट दो क्लास दो सेक्शन में पढ़ाते हैं तो हो सकता है एक आगे चला जाए और एक पीछे रह जाए. तो कोलिग्स के बीच में भी बहुत सारा प्रैक्टिसेस अपनाना है ताकि ठीक ठाक टीचिंग कंडीशंस बना रहे. So a healthy relationship with colleagues may increase productivity and help eliminate obstacles in reaching goals. दोनों को तो एक ही जैसा पढ़ाना है, दोनों को तो एक ही सिलेबस कंप्लीट करना है. तो एक अच्छा रिलेशनशिप अगर हो तो दोनों अपने आप ठीक से पढ़ा सकते हैं. So teachers will not find any faults with anyone. Now there are some rules to have a healthy and ethical relationship with a colleague. What are the rules? What you have to follow? जैसे कि do not provide misinformation about your work. अगर इंफॉर्मेशन देना है तो सही इंफॉर्मेशन दीजिए, गलत नहीं, तो उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. ट्रस्ट योर कोलिग्स एंड बी ट्रस्टवर्दी. ये थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग द अदर पीपल ट्रस्टिंग यू. टेक द इनिशिएटिव टू वर्क एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली. हम अगर कुछ काम करते हैं तो हम लोगों से जुड़े हुए जो टीचर्स हैं उन लोगों को हम कम्युनिकेट जरूर करेंगे, तभी ठीक रिलेशनशिप होगा. एलिमिनेट करप्ट प्रैक्टिसेस. कुछ करप्शन नहीं होना चाहिए. जैसे कि हम क्लास में ये पढ़ा रहे हैं और दूसरा टीचर उसी सेक्शन उसी क्लास का दूसरा सेक्शन में पढ़ा रहे हैं, तो हम क्वेश्चन सेट करने वाले हैं और हम बता देते हैं कि ये क्वेश्चन हम सेट किए, तुम लोग सब पढ़ के आना. सो दिस टाइप ऑफ करप्शन और करप्टेड प्रैक्टिसेस शुड नॉट बी फॉलोड. तभी एक हेल्दी रिलेशनशिप आप ले सकते हैं. रेस्पेक्ट योर कोलिग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम पहले ही बोले थे, भले आपको पसंद है या ना पसंद, minimum level of respect should be there among each other. Obey organizational rule books. सब organization में एक rule book होता है, norms होता है. So where you can be leading a prestigious life in your profession, अगर आप वो rule book follow करें तो. Give due credit to others' work. अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो क्रेडिट तो करना चाहिए. आप लोग थोड़ा म्यूट करके रखिए. प्रदीप कुमार जी थोड़ा म्यूट कीजिए. प्रदीप जी थोड़ा म्यूट कीजिए. मार के पूरा चलिए वहाँ के मारे को यहाँ नहीं. देखिए ऐसा अगर टीचरशिप में हो तो कैसे होगा. प्रदीप जी थोड़ा म्यूट कीजिए आप. तो ओके, सो म्यूट किए नहीं लेकिन म्यूट हो गए. ओके फाइन. अच्छा तब तो मुझे ओके थैंक यू.
So yes, I was telling, credit देना चाहिए दूसरों को, be genuine, accept feelings and feedback, जो भी feedback हो सकता है हम लोगों में कुछ वीकनेस हो या कुछ फीडबैक बाकी लोग देना चाहें तो एक्सेप्ट करना है, खुद को चेंज करना है। लिसन टू योर कोलिग्स, कोई अगर कुछ बोलना चाहते हैं वो अगर सुन के उनको इम्पोर्टेंस दिया जाए तो ये भी सही है। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, you are sitting in the staff room and you have seen one of your colleagues who seems upset and sad. On humanitarian grounds आप क्या बोलेंगे? आप जाके उसको पूछेंगे कि आपको कुछ मुश्किल है, आप दुखी है कि कुछ? आप तो ऐसा नहीं थे पहले। तो however the colleague refuses to discuss the issue and does not want anyone to get involved. नहीं, हम बताना नहीं चाहते, हम ठीक है, ठीक हो जाएंगे। So ethically it would be best to back off, और उसको अगर वो भले ही आपका जिगरी दोस्त हो कि अच्छे इंटरेक्शन हो, अच्छा फ्रेंड हो, फिर भी अगर कोलिग नहीं बताना चाहते हैं तो इसका अच्छा ही होगा कि आप उसको ज़्यादा पूछिए मत। तो ethically it would be best to back off and not get personal or pry. Getting too personal at the workplace may showcase unprofessionalism. तो इसमें कोलिग रिलेशनशिप में ज़्यादा अगर पर्सनली चले जाते हैं, दैट इज नॉट दैट यू आर मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म। तो कैंपस में, स्कूल में, कहीं भी आप अगर काम के जगह में हो, वर्क प्लेस, there some type of professionalism is to be maintained. However, if your colleague asks for your help, you should not hesitate to do so. अगर कोई पूछता है मदद के लिए, इट्स ओके, फाइन, आप मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपके ही कोई टीचर जो कि आपके साथ बैठते हैं हर वक्त, आप उसको मदद करना चाहते हैं, अगर वो मदद नहीं लेना चाहते तो इससे अच्छा आप नहीं करें तो ठीक है। दैट इज व्हाट प्रोफेशनलिज्म इज। Now that comes another stakeholder called parents. एथिकल रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। पेरेंट्स तो बहुत किस्म का होते होंगे, आप तो देखे होंगे पेरेंट टीचर्स पीटीए मीटिंग में, तो उस वहाँ पर पेरेंट्स आएंगे, बहुत किस्म को पूछेंगे बच्चा कैसा है, पढ़ रहा है क्यों नहीं, कम मार्क क्यों आया, बहुत किस्म का क्वेश्चन आप फेस करते होंगे। सो देयर शुड बी सम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन in between the teachers and the parents. So in students life these are the two poles, दोनों को एक साथ communicate करना ही है, क्योंकि student goes with the parents as well as with the teachers. There's a proper and periodic communication between a teacher and parents is essential for the academic wellness of the learner. अगर बच्चा क्लास में आके सो रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, ना ही होमवर्क कर रहा है, ये अगर ज़्यादातर रिपीटेड हो, कंटिन्यूस हो, तो आप बेझिझक पेरेंट्स को बुला कर बोल सकते हैं कि ठीक है, ये बच्चा आपका ऐसा कर रहा है। तो देयर शुड बी प्रॉपर कम्युनिकेशन, ताकि बच्चे को सुधरना के लिए मुश्किल ना हो। इट शुड नॉट बी लेट फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। या पेरेंट्स भी बता सकते हैं, जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कोई कि हम तो आपके हवाले कर दिए, टीचर्स लोग को देखना है कि बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक को नहीं, दोनों को मिलकर देखना है, पेरेंट्स को एज वेल एज टीचर्स को। तो इसलिए दोनों का बीच में कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। And parents and teachers should share the required information for the harmonious development of the child. बच्चा का अच्छा प्रोग्रेस के लिए दोनों अच्छे भी बात हो तो हो सकता है, बात शेयर करें तो बुरा बात हो भी, बच्चे को सुधारने के लिए बोथ टीचर एंड पेरेंट्स कैन प्ले ए मेजर रोल। जैसे कि एक एग्जांपल हो, you contact the parents of a child who is not doing well in his or her studies. Then
you go to their home to have a professional meeting with them. तो पेरेंट्स बुलाए कि आप आ जाइए, आप थोड़ा संभाल लीजिए, समझाइए बच्चा को, तो आप गए उसके घर. So after the meeting, they offer you a gift as a token of gratitude. Thanks बोलने के लिए कुछ दिया और आप लिए भी. You accepted it. Okay. After a few more meetings with them, the frequency of the gifts increases. जितना आप मिलते हैं तो गिफ्ट्स देते ही रहते हैं और आप लेते भी रहते हैं. तो some of the gifts are expensive, महंगा भी है. So now the parents are demanding a favor from you to promote their child to the next class. तब क्या करेंगे? तो हम आपको इतना बड़ा बड़ा महंगा गिफ्ट दिए, इतना सारा किए हैं, अभी मेरा बच्चा फेल कर रहा है तो आप थोड़ा उसको प्रमोट कर दीजिए. तो यहाँ पर हो जाता है एक एथिकल रिलेशनशिप विद पेरेंट्स. सो दैट शुड बी सम टाइप ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स. फर्स्ट और सेकेंड इंस्टेंस इज ओके, लेकिन लगातार ये काम होता रहे तो ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स इन लोगों का फायदा ले लें, टीचर्स का. सो दे विल बी हियर एक्सेप्टिंग और गिफ्ट्स, गिविंग गिफ्ट्स मे सीम एक्सेप्टेबल टू सम एक्सटेंट, जैसे कि हम बोले. तो बट एज टीचिंग प्रोफेशन यू मस्ट नो वेयर टू स्टॉप. एक बार गए एज एन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ठीक है, हम बताते हैं आपको ये ऐसे ऐसे बच्चा को संभालना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आपको अगर बार बार बुलाया जाए और बार बार आप जाएंगे और गिफ्ट लेके आएंगे तो दिस इज नॉट द प्रोफेशन ऑफ ए टीचर, राइट? सो दैट इज व्हाट पेरेंटल रिलेशन. Now, ethical relationship with community and other stakeholders. So, as a teaching professional, you are responsible for shaping the community and prospective citizens. Community मतलब आपके क्लासरूम हो या किसी और ग्रुप का आपको रिस्पॉन्सिबल दिया हो, या पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सब जो भी उसी कैंपस में हो, सब एक जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सब कोई हो. So there should be an ethical relationship. चाहे कोई साफ सुथरा करने के लिए हो या जो भी हो, सब कोई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रहते हैं. So there should be a ethical relationship there too. So therefore a sincere teacher should be aware of the need of community and should try to teach values accordingly. So every community consists of unique culture, beliefs, tradition, and as a teaching professional, you should endeavor to understand, respect, and preserve them. जैसे कि हम pluralism में बता रहे थे, so ये community के हिसाब से आपको respect देना है हर community को. So then only we can develop a proper ethical relationship with everyone in the situation or the institution. Therefore, it would be better if you try to encourage students to participate in the community. जैसे कि आप खुद दे रहे हैं, एक moral science बोलिए, moral standard बोलिए, या हाउस टीचर के हिसाब से बोलिए, तो आप जिस तरह का कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पर बच्चों को भी आप बुला सकते हैं और कम्युनिटी के लिए आप सिखा सकते हैं वहाँ पर कैसा करना है. जैसे कि एक एक टीचर का रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है कि ये बच्चा जाएगा स्पीच कंपटीशन के लिए या क्विज कंपटीशन के लिए या आर्ट कंपटीशन के लिए, पेंटिंग वगैरह, तो आप कैसे डील करते हैं. तो हियर द स्टूडेंट आल्सो लर्न्स अकॉर्डिंगली टू डील विद देम. तो ये रहा यूनिट 3 खत्म. तो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ आप लोगों को पूरा पता चल गया है. अभी फिर से हम पूछेंगे कि यूनिट 4 मैनेजिंग द सेल्फ आप लोग सबको दिख रहा है, क्योंकि ये ऑनलाइन है इसलिए पूछने का जरूरत हो रहा है. सो इज इट विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, madam. Yes. ओके ओके, थैंक यू. तो एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं ताकि it will be easy for everyone to understand, and you also put yourself कि हम किस जगह पे हैं.
So what is the development or upgradation for me in this situation? So किस तरह का होना चाहिए? इट्स नॉट दैट हाँ ऐसे स्कूल बोले हैं हम लोग को ये अटेंड करना है, अटेंड कर लेते हैं, हाँ हो जाता है। हम सॉरी, यहाँ पर सर पाणिग्रही सर भी बता रहे हैं कि अगर खुद को डेवलप करना है तो सही में सब कोई डेवलप कर सकते हैं। सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट यूनिट 4, मैनेजिंग द सेल्फ। तो अंडरस्टैंडिंग के बाद मैनेज कैसे करना है, सब कुछ तो मुझे पता चल गया, ये करना है वो करना है, लेकिन हर वक्त हमसे मैनेज नहीं होता है। नाउ फोकस इज ऑन हाउ टू मैनेज योरसेल्फ, मतलब टू लीड ए मीनिंगफुल प्रोफेशनल लाइफ। तो यहाँ पर हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स पर तो डेवलप करेंगे along with some other skills of conflict। तो यहाँ पर यूनिट 4 में हम देखेंगे मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, किस तरह का होता है, और इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द डिफरेंट सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करता है या किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और it will also help you to understand how conflicts can affect relationship। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट अगर हो तो वो रिलेशनशिप में कैसे अफेक्ट करता है, किसी भी रिलेशनशिप आप बताइए, जैसे कि स्टूडेंट टीचर हो या टीचर टीचर हो या टीचर पेरेंट्स हो, अभी जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। सो इट विल अफेक्ट द रिलेशनशिप एंड परफॉर्मेंस ऑल्सो ऑफ द इंडिविजुअल। भले ये स्टूडेंट का हो या टीचर को हो, दोनों का परफॉर्मेंस में, या पेरेंट्स का हो, सबका एक अंडरस्टैंडिंग में अफेक्ट कर सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है, हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट का, ये बाकी हम लोग ऐसे एक एक के बाद करेंगे। तो सिचुएशन, हम हर वक्त बोलते हैं किसी भी स्टूडेंट को अगर हम लोग ब्लेम करते हैं तो स्टूडेंट को ब्लेम नहीं करना है, ब्लेम करना है सिचुएशन को। स्टूडेंट तो है, वैसे टीचर को भी हम ब्लेम नहीं करते हैं। तो अब हम कुछ सिचुएशन हम दिखा रहे हैं, जैसे कि दो स्टूडेंट में कैसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। सो तन्वी एंड पारुल स्टडी इन 7th grade in a residential school and have been competing with each other. However, Tanvi has formed a group with few of her classmates to point out shortcomings of Parul and make fun of her in front of others, including their classmates, students of other classes, teachers, dormitory, dining hall, school and hostel corridors, playground. तो ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा हो गया, दोनों अच्छे पढ़ रहे हैं लेकिन दोनों में कंपटीशन है। तो कंपटीशन में तन्वी को थोड़ा जेलस फीलिंग हुआ कि वो नहीं चाहती कि पारुल अच्छा पढ़े या अच्छा मार्क्स लाए। तो वो क्या की, वो पारुल का मजाक उड़ाने लगा क्लासमेट्स के सामने, टीचर्स के सामने, कहीं भी डॉर्मेटरी हो या खाने को जगह हो, तो खेलने के जगह हो, हर जगह वो हंसी मजाक उड़ाने लगी पारुल के बारे में, पारुल के सामने भी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो हियर यू शुड नो हाउ टू एड्रेस द स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट टीचर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन कैसा हो सकता है। Rakshit is a student of grade 9 and is considered as a non-serious student. सब कोई बोलते हैं रक्षित कुछ सीरियस नहीं लेता है। तो श्यामल कुमार, एक young and enthusiastic chemistry teacher, has joined and noticed Rakshit not paying attention in the class. He called Rakshit aside and on inquiring, he learned from the boy that it does not matter if he pays attention or not. Shyamal gets to know that the boy doesn't think that he is a non-serious towards his studies, but it is the making of another teacher. रक्षित सोचता है कि हाँ हम तो ठीक है, लेकिन टीचर लोग ऐसे सोचते हैं मेरे बारे में. So that is what he is saying.
So Rakshit believed that his mathematics teacher, who is teaching him from grade 8 onwards, does not like Rakshit at all and has told all other teachers that Rakshit does not attend the class seriously. And so everyone in the school considers him so. रक्षित को यही बोलना है कि मैं तो सीरियस हूं ही, लेकिन वो मैथ्स टीचर जो है वो मुझे लाइक नहीं करते, वही बोलते हैं कि हम सीरियस नहीं है, हम मैथ्स नहीं कर सकते। तो वो सबको बोल दिए, इसलिए सब टीचर्स मुझे बोल रहे हैं कि हम सीरियस नहीं है। So there is a conflict between the teacher and the student. So if the student is not doing the work properly, तो अगर आपको दिख रहा है कि हाँ स्टूडेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, सो आप उसको एंकरेज करेंगे काम करने के लिए, बल्कि उसको अगर बोलते हैं कि तो सीरियस कभी नहीं लेता है, तो उसको एक ऐसा पर्सनालिटी स्टार्ट हो जाता है, तो हम सीरियस ही नहीं लेते हैं, ये जब बोले बाकी टीचर्स भी मुझे ऐसा ही बोलेंगे। तो कोई कोई जब बोलने लगते हैं तभी वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि वही टीचर ही बोले होंगे इनको। So this is what a conflict between a student and teacher. Well, in situation 3, teacher में कैसे conflict होता है? Now Sunita, an enthusiastic teacher, joined a residential school with high expectation from self. कि हम पढ़ाएंगे, हम कुछ करेंगे बच्चों के लिए, हम अच्छा से पढ़ाएंगे. That is a genuine thing when a new teacher comes inside. So she initiates the work, takes responsibility and puts in 10 to 12 hours of hard work every day. जब नए नए होते हैं सब कोई ऐसा करते हैं शायद. So बेचारे सुनीता भी सब कुछ इनिशिएट करती थी, तो सब कुछ अपना काम अपना कंधा में ले लेती. आई विल डू, हर वक्त एक्टिव दिखाती थी. So in the staff room, another teacher says her to slow down. इतना एक्टिव दिखाने का जरूरत नहीं है, सब कोई करेंगे. So Sunita often ends up doing all work whenever she has to work in a team, as other members of the team do not do or delay the work. So Sunita को पेशेंस नहीं है, अगर कुछ काम है तो जल्दी से खत्म करना ही है, एंड अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसका काम भी हम कर लेंगे. कोई टीचर ले सकते हैं, कोई टीचर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा वो क्यों दिखावा कर रही है. So there will be conflicts like this. It's up to the thoughts. जैसे आप लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से, वैसा ही आप दूसरों को परसीव करेंगे या देखने शुरू करेंगे. So in this, everyone is involved with conflicts. So not all conflicts are noticeable. सब कुछ दिखता नहीं है, लेकिन conflict सब में होता है. तो हम आगे बढ़ेंगे किस किस तरह का conflict होता है देखने के लिए. So we don't get to know that a colleague or a student is in a conflict situation. बीच बीच में ऐसा भी होता है कि कोई अगर conflict में हो हमें दिखता नहीं है, till the time it is shared personally. कोई हमें अगर नहीं बताते तो हम इतना importance नहीं देते हैं. By that person or their behavior and action shows that the attempts being made by them to deal with the conflict. जब तक कोई behavior basis ना दिखाए तो मन में क्या है वो कैसे बताएं. तो that is what the conflict situation, hidden conflict situation sometimes. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे the nature and meaning of conflicts, identify and describe different sources of conflicts. Conflicts कहाँ से आता है, and explain and differentiate types of conflicts, understand functional and dysfunctional conflicts. तो इतना तक देखते हैं क्या होता है. सो मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों को सबको तो पता ही है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब ही क्या है. अगर किसी का थॉट, आइडिया या बिलीफ या एटीट्यूड, बिहेवियर या अलग किसके एक्सपीरियंस एक जैसा ना हो तो ऑब्वियसली देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन पीपल. So it refers to any situation in which people involved have incompatible goals, thoughts or emotions and they lead to resistance or opposition. कोई एक बोलता है तो दूसरा और कोई बोल देता है, तो वहां पर एक ऑपोजिशन आ जाता है और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है.
सो अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो क्या है? तो इट विल लीड टू डिसएग्रीमेंट। कोई एग्री नहीं करेगा एक सिचुएशन को, कंट्राडिक्टरी वर्ड्स होगा, हम एक बोले तो और एक कोई और बोले, इनकम्पैटिबिलिटी, हम लोग दूसरों को समझना नहीं चाहेंगे. So in professional life or in work settings, conflicts affect on the quality of the production and productivity of the people involved, and also has considerable impact on the mental health of the people, directly or indirectly. तो सबको खुश रहना है. अगर प्रॉब्लम में रहना है तो ऑब्वियसली हमें दुख होगा, या हम इरिटेट हो जाएंगे, या हम ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर मेंटल हेल्थ पर प्रभाव हो सकता है. सो मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज दिस, and the sources of conflict we will come to know. What are the causes of conflict? So there are differences in goals. किसी को कुछ चाहिए तो किसी को और कुछ चाहिए. तो अगर गोल्स में डिफरेंस हो तब ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, बिकॉज देर आर टू डिजायर्स, आई वांट दिस एंड आई वांट दिस. सो in the desired end states or preferred outcomes, the differences are rigidly incompatible. अगर दो ग्रुप हो, two groups of students, they wanted to celebrate the annual day in the school, तो अगर सब एक जैसा सोचे तो ठीक है, बट इफ द ग्रुप्स कम्स इनटू द पिक्चर तभी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है दोनों ग्रुप में. So the goals are different and cognitive processing is different. Cognitive processing means हमारा thoughts, feelings, हम जैसा सोचते हैं दूसरे नहीं सोचते हैं, तो उसी के हिसाब से conflict पैदा हो जाता है. Then comes affective expressions. Affective expressions तो बोला जाता है emotion. तो emotion, it varies from people to people. Like as you can see, some people are happy, some people are not. As for example, जैसे कि दिया गया है, on knowing that you have been selected for an award by the school, you may feel very happy and satisfied and express the same by celebrating it with your colleagues. इसको अच्छा नहीं लगता, किसी को अगर अवार्ड मिलता है तो ऑब्वियसली हम लोग खुश होते हैं. While another colleague in the same situation does not agree to celebrating it, तो उसको लगता है कि इसके लिए क्या सेलिब्रेट करना है, मिला तो मिला उसको. तो उसके हिसाब से दूसरा कोलीग क्या सोचने लगेंगे कि ये ज्यादा शो ऑफ करता है, इसको तो ये तो बहुत लोगों को मिला है, इसको अकेले थोड़ी मिला है. तो सबका इमोशन एक जैसा नहीं होता है, affective expression बहुत अलग अलग होता है. So these are the causes of conflicts. तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट का स्कोरिंग पैटर्न है. तो आज तो किसी के पास नहीं है पेन एंड पेपर, तो कॉन्फ्लिक्ट अगर ये क्वेश्चनर आप लोग करते हैं तो आपको पता चलेगा आप किस किस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट को रेज कर सकते हैं. तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो वी विल गो फॉर इट टुमारो और ऑन द लास्ट डे, सो दैट आई विल गिव यू द स्कोरिंग हाउ इट इज. तो sources of conflicts are different. Now, conflict can arise because of both personal and organizational sources. So personal sources किस तरह का हो सकता है? तो होता है perceptions, personality differences. मेरा पर्सनालिटी अलग है, दूसरा का अलग है, तो इसी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है कि हम ये चीज को कैसे देखते हैं या कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, उसको मोटिवेशन कैसे लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं. तो ये सब पर्सनल में आ जाता है. तो ऑर्गेनाइजेशनल सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में इट मे अराइज ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस. तो अनसर्टेनिटी और जॉब इनसिक्योरिटी, जैसे कि कोविड में हुआ था, बहुत लोगों को कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि हम यहाँ पर रहें कि नहीं, हमें दूसरा जॉब के लिए जाना था कि नहीं. तो रिसोर्स स्कैर्सिटी, हम कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं,
लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा वैल्यू नहीं है, सो दैट बिकम्स अ कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. So why do people get into conflicts? So सब में क्यों 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 कॉन्फ्लिक्ट आता है? जैसे कि हम पहले बताए, पर्सनालिटी डिफरेंसेस, नो टू पीपल आर सेम. सो दोनों में अलग अलग सिचुएशन होता है, दोनों अलग अलग अडेप्टेशन होता है, जगह जगह में पढ़ाई हुआ है, उन लोग जैसे देखेंगे सिचुएशन दूसरा कोई नहीं देखेगा. सो अलग अलग पर्सनालिटी डिफरेंसेस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. नेक्स्ट, परसेप्शन इन फैमिली बैकग्राउंड, किसका कैसा फैमिली है, किसका कैसा एक्सपीरियंसेस है, किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल का, किसी का 20 साल का भी हो सकता है. सो इट डिफर्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ परसेप्शंस. Then it comes to values and interest. People have different values and interests which might cause conflict. Power and status, वो तो है ही. अगर कोई सीनियर और जूनियर में है और जूनियर कुछ बताना चाहते हैं, तो क्या पता सीनियर उसको एक्सेप्ट करे कि नहीं, बिकॉज ऑफ द पावर एंड स्टेटस ऑफ द पर्सन. दैट may lead to conflict or scarcity of resources. एक कैप्टन चाहिए, लेकिन हम लोगों को 3 स्टूडेंट में अच्छा खासा क्वालिटी दिख रहा है, लेकिन स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, हम तीनों का तीनों को नहीं ले सकते हैं, तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है. इवन देयर विल बी आल्सो, लाइक देयर आर बेस्ट टीचर अवार्ड अगर कहीं दिया जाता है, तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि हमें 3 टीचर ही चुनना है, लेकिन वहां पर बहुत सारे टीचर हैं. सो इट इज द रिसोर्सेस आर, टीचर को चुनना मुश्किल है, वहां पर अवार्ड कम है कि नहीं दे सकते. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेज एंड सर्कमस्टेंसेस व्हिच में राइज टू कॉन्फ्लिक्ट्स. अभी आता है टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. पहले तो हम बताए कि किस तरह का, कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, और whether it is personal or organizational, अगर ठीक से हम लोग नहीं देख सकते तो it is a conflict among us. ये सब बहुत आसान है, just you need to know the terms, किस तरह का होता है. जैसे कि टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अगर देखा जाए तो इट इज इंट्रापर्सनल, जबकि अंदर, हमारे अंदर ही है कॉन्फ्लिक्ट, हम ही नहीं समझना चाहते हैं. या इंटरपर्सनल, या आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे और दूसरों के बीच में. इंट्रा ग्रुप, भले ही एक ग्रुप में सब एक जैसे हो, लेकिन तभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है. इंटर ग्रुप, इन बिटवीन द ग्रुप्स. एंड इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सब कोई काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो हम आगे देखते हैं किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट किस किस जैसे होता है. तो इंट्रापर्सनल, हमारे अंदर किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है और कब होता है. तो वो ऑकर्स विद इन वंस ओन सेल्फ व्हेन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज इनकम्पैटिबल विद वंस थॉट्स, गोल्स और इट्स कॉन्सिक्वेंस. सो इट मे बी पॉजिटिव या नेगेटिव. तो वहाँ पर हमारे थॉट्स, हमारे गोल्स में अगर ठीक नहीं बिठा सकते, तो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं. जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट आवर ओन कॉन्फ्लिक्ट, हम में क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है. देयर आर 3 टाइप्स इन द सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट. तो वन इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि 2 पॉजिटिव चीजें हैं और मुझे किस तरह जाना है. जैसे कि 2 अच्छा जॉब्स मुझे मिला है, ये भी इतना पैसा देता है और अच्छा ब्रांडेड है, अच्छा नाम भी है, और वो भी अच्छा है, तो मुझे कहाँ पर जाना है, उसमें मुझे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. अप्रोच में दोनों ही अच्छा है, लेकिन पता नहीं कौन सा हम जाए. अनदर इज अवॉइडेंस, मुझे ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, लेकिन करें क्या. तो वहां पर when a person must choose between 2 or more negative and undesirable options, जो पसंद नहीं होते हैं. जैसे कि when you don't want to go to class as you are not feeling well, मुझे क्लास भी नहीं जाना है, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है. So in that, and also not sit idle in classroom
as you had planned to some interesting activities with students in your class today. So here, both the conflicts are there which are negative in nature. You have to decide which one to take. But sometimes you have positive and negative. Now, to decide in between getting a good job offer but far away from hometown. बहुत लोग ऐसे भी हैं कि घर में ही बैठ के काम करें, घर के आसपास काम करें, दूर जगह ना जाए. लेकिन अगर दूर में अच्छा खासा मिलता है मुझे नौकरी, तो पता नहीं हम घर छोड़ के कैसे जाएंगे, वहां पर जाने से भी मेरा प्रमोशन होगा वगैरह सब कुछ है. So these are all intrapersonal conflict. If we talk about intrapersonal conflict, there are 3 types: approach, avoidance, and approach avoidance. So from the term itself, आप अगर बताते हैं positive, negative और positive, ऐसे याद करने से आप लोग को पता चल जाएगा. Then interpersonal conflict. So it takes place between two individuals, हमारा और दूसरों के साथ, in a situation and have discrepancy, maybe about our thoughts, feelings, emotions, interests, कुछ भी हो experience, तो हम दोनों में पट नहीं रहा है, तो there is a conflict in between us, both of us. So two people competing for the same position, two colleagues having different viewpoint about how a group of unruly students have to be managed, or two students fighting for their teacher's attention in the classroom. ये भी बहुत मजाकिया है कि आप जब क्लासरूम में जाएंगे तो आप सिर्फ देखिए स्टूडेंट्स लोगों को परसेप्शन, आप हो सकता है कोई स्टूडेंट्स बहुत अटेंशन सीकिंग है कि टीचर मुझे ही देखे, और ऐसा अगर 2 स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों में हो जाएगा नहीं टीचर यहाँ पर देखते हैं ज्यादा, तो मैं यहाँ पर ही बैठूंगा. तो it becomes a small conflict among them. It is an interpersonal conflict. Now, intra-group conflict. In this, one group is formed. एक group कैसा form होता है जबकि सबका common होता है, सबका common goal होता है, motives, interests सब एक जैसा होता है within the group. तो फिर भी conflict क्यों? Now, they find it difficult to resolve. अगर सब कोई एक जैसे कैटेगरी में हो तो सब कोई एक जैसा नहीं भी बोल सकते हैं. Here what happened? The conflict within groups is complex and can be divided into two. 2 तरफ का conflict हो सकता है एक इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में. One is substantive conflict. Substantive conflict कुछ substance या कुछ content को लेके conflict होता है. और एक affective conflict, it is emotionally. कुछ भी affective expression हो तो ज्यादातर उन लोग इमोशनली और इंटरपर्सनल क्लासेस में होता है. जैसे कि योर स्कूल हैज बीन चोजन टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन, वेयर द विनिंग स्कूल टीम, जो कि टीचर स्टूडेंट सब कोई मिलके, विल बी सेंट टू रिप्रेजेंट द स्टेट and participate in the national science exhibition. But between the 4 science teachers in your school, there is no consensus as to which 2 science experiments they should send, so that their selection is assured, as the teachers are adamant that only their respectively chosen experiment to be chosen. इसमें सब साइंस टीचर है जैसे कि हम बोले इंट्रा ग्रुप में, लेकिन सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, मतलब कैटेगरी है. मुझे ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगता है तो कोई बोलता है नहीं ये एक्सपेरिमेंट हम दे. तो जब कोई सब एक साथ ही हो लेकिन उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि किसको लिया जाए, तो वहां पर इंट्रा ग्रुप में भी कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि स्टूडेंट टीचर्स जब कोई सब हाउस मास्टर सब कुछ होते हैं तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि सब एक ही क्लास का हो तो किसको लेके जाए, तो इसको भेजे या उसको भेजे. तो दोनों अगर देखा जाए तो एक ही जैसे हो फिर भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. तो
यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट से पता चल जाता है कि किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट को हम डील किया। अगर हम लोगों में सही सलामत अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो ऑब्वियसली देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट। हमें ये कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना है। ओके, नाउ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। एक तो ग्रुप नहीं है, जैसे कि हम साइंस टीचर बोले तो इंटर ग्रुप मतलब हो सकता है साइंस एंड मैथ्स टीचर, ऐसे हम एग्जाम्पल दिए। लेकिन यहाँ पर when a group of individuals find in each other similar interests, choice, likes and dislikes and thus bond with the others, वैसे ही दूसरा ग्रुप भी एक जैसा ही हो, फिर भी when some other individuals show different needs, motives, there is a conflict. So हर वक्त हम लोगों के सोच विचार एक जैसा नहीं है। अगर हम कुछ सोचते हैं तो दूसरा और कुछ सोच लेते हैं। तो हमारा ग्रुप के हिसाब से, जैसे कि एक कबड्डी के कंपटीशन हो रहा है, एक ग्रुप इधर है एक ग्रुप उधर है, तो दोनों ही कबड्डी खेल रहे हैं, लेकिन ये एक ग्रुप से कौन जाएगा, ये जाने से ठीक होगा ना वो जाने से, दूसरा ग्रुप से कौन जाएगा, तो इंटर ग्रुप में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। So you have noticed in your school or classroom or hostel, two group of students engaging in fights or quarrel. कभी भी हम लोग देख सकते हैं। So this is among the two groups. Here the incompatibility is not an individual level but what the group level is. So here अगर फाइट अगर होता है तो ग्रुप लेवल में होता है, इंडिविजुअल लेवल में नहीं होता है। ज्यादातर देयर इज ए यूनिट वी से, बट आजकल बहुत तरह का यूनिटी तो नहीं दिख रहा है, फाइटिंग ज्यादा दिख रहा है। तो हम लोग को देखना है कि इंट्रा ग्रुप में ज्यादा होता है या इंटर ग्रुप में ज्यादा होता है, लेकिन जो भी होता है देयर इज ऑलवेज ए कॉन्फ्लिक्ट विद इन अस। ओके, सो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स है और दूसरा किस्म का सब स्टाफ है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करने के लिए तो सब कुछ सबको चाहिए, फिर भी यहाँ पर किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो हियर the concern is primarily at the level of the organization as a whole. So when at the organization level, जैसे कि स्कूल टीचर्स बोलिए, teachers who have been in the school for many years are in conflict with the teachers who have joined or transferred recently. So in the organizational conflict, sometimes we see that the organization or the management, they are giving more importance to the new teachers than the old experienced teachers on the same area. तो कभी कभी मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट भी दिखने को मिला कि हाँ, नए नए टीचर्स को ज़्यादा सैलरी मिलता है तो हम इतना साल रहे हैं, हमें क्यों नहीं। So the organization is biased in nature. So there may be conflicts like this. There may be conflicts that the organization is selecting this teacher for exhibition. This teacher, तो यहाँ पर टीचर और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग देखते हैं किस तरह का हो सकता है। There are 3 types of conflicts. One is vertical, second is horizontal, थर्ड इज रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जैसे कि ऑकर्स ड्यू टू लेवल्स ऑफ और हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम बोले सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट लेवल में वो कॉन्फ्लिक्ट दिख सकता है, विच इज वर्टिकल इन नेचर। हॉरिजॉन्टल में conflicts between employees or departments at the same hierarchical level in the organization are called horizontal conflict. जैसे कि एक डिपार्टमेंट का सीनियर टीचर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या दूसरा डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इसमें हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट है। वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे, जैसे कि सीनियर जूनियर में हो सकता है। एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट,
So when individuals in the organization do not have clarity about the specific roles and responsibilities and all feel and think that they all have same role, जैसे कि एक डिपार्टमेंट में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनका रोल और बाकी लोगों का रोल अगर इन द ग्रुप आर सेम, तभी कॉन्फ्लिक्ट बहुत होगा, क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट नो देयर ओन रोल्स. सो देयर हैव बीन पीपल इन द डिपार्टमेंट की जो सीनियर के ऊपर भी बात करे या सीनियर कोई समझने वाले नहीं हो, जो जूनियर का प्रॉब्लम हो. देयर आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रोल. तो मुझे मेरे रोल एज ए टीचर क्या करना है? तो इफ आई नो व्हाट इज माय रोल, व्हाट इज माय एथिकल स्टैंडर्ड, व्हाट इज माय क्या बोलते हैं, हाँ, दिस इज व्हाट माय इंस्ट्रक्शंस गिवन टू मी. इफ आई फॉलो ऑल दिस थिंग्स, then there will be no problem with my role conflict. But if I wanted to show more than me myself, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल में दिखाए, नए टीचर आए, सब कुछ करना चाहती है, तो सब कुछ करने के लिए तो उसका रोल नहीं है. सो शी इज अनअवेयर ऑफ हर ओन स्पेसिफिक रोल. सो दैट इज वेयर द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस. अगर हमारा रोल हम ही को नहीं पता, तो देयर विल बी एक्स्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग in the same place or in the higher level also. So these are different type of conflicts which may take place among us, and conflicts will be there. ऐसा कुछ कोई नहीं है. जैसे कि हम एक गेस्ट लेक्चर ले रहे थे एक स्कूल में, तो हम बोले, हम पूछे कि स्ट्रेस अगर हो, स्ट्रेस के बारे में बोले तो किसका स्ट्रेस नहीं है, आप हाथ उठा सकते हैं क्या? तो बोले स्ट्रेस तो सबको होता है. तो वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट सबको होता है, लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि हम मैनेज कैसे स्ट्रेस को कर सकते हैं, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट को भी करना है. सो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है, हम नेक्स्ट बताएंगे. लेकिन हम लोग अगर कॉन्फ्लिक्ट को वैसे ही रखने दें, एंड इफ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर कॉन्फ्लिक्ट्स, then obviously this conflict will give rise to a stress. So this is where one negative will rise to another negativity. So there will be a big problem among us. So this is what we have learned today is the professionalism, the ethical standards, the conflicts, the sources of conflicts, and the types of conflicts. सो ये सब अगर विथ एग्जाम्पल भी बताएं, जैसे कि आप लोग भी एग्जाम्पल को टैली करके देख सकते हैं कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप लोग भी फेस किए हो क्या अपना क्लास में या स्कूल में, या सुनने को मिला क्या किसी और टीचर के साथ ऐसा ऐसा कुछ मुश्किलें हो गया तो वो ठीक से नहीं देख पाए, तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंगली. सो आज के लिए हम सोचते हैं इतना ही है. और कुछ और दो ठो है, हम दिखा देते हैं. कॉन्फ्लिक्ट को यहीं पे खत्म कर देंगे. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगेन, फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल. फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट एक पॉजिटिव लिया जाता है. फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हेल्प पीपल टू टेक क्वालिटी डिसीजंस, क्योंकि हम लोग एक्टिव रहते हैं, हमको पता चलता है किस कॉन्फ्लिक्ट में है और कैसे कैसे इसको नरिश करना है. So it encourages creativity, innovation, interest and curiosity among people. अगर मुझे नहीं दिया जाता है तो हम देखते हैं इसको कैसे किया जाए. लेकिन डिसफंक्शनल, हम लोग अगर कॉन्फ्लिक्ट से चिढ़ जाते हैं और अगर हमें अच्छा नहीं लगता, इट विल लीड टू पुअर कम्युनिकेशन एंड पुअर परफॉर्मेंस अमंग पीपल और ग्रुप मेंबर्स. तो ये दो मेजर किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होता है. और इसमें अगर हम लोग फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स को देखें तो इट विल बी गिविंग एन अवेयरनेस. तो अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है तो हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे क्या है, क्यों ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों के बीच में हो गया है. इट विल गिव राइज टू एनालिटिकल थिंकिंग. हम लोग थॉट प्रोसेस के हिसाब से सोचेंगे
कि इसके बाद हम लोगों को क्या करना है ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट सुलझ जाए। डिफ्यूजिंग टेंशन नहीं होगा और ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप का बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सो ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट लेने से हम लोग को टेंशन ज्यादा तो होता ही है। सो इफ यू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो देन इट विल बी मोर ऑफ promoting healthy competition and bringing attitudinal and organizational changes। ये तो रहा फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट अगर हम लोग देखें तो। लेकिन अगर डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, हम लोग समझना नहीं चाहते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ है, लेकिन हम लोग को ये सुलझाना है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देयर विल बी डिक्रीज्ड कम्युनिकेशन। एक दूसरे को समझना कोशिश नहीं करेंगे। There will be trust issues. I will not believe the other person. तो ग्रुप तो होगा ही नहीं, हम खुद दूसरों को बिलीव नहीं करेंगे। तो ये होने के कारण हम लोग का टेंशन बढ़ जाएगा, हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि ये होना ही नहीं चाहिए, और हाई एट्रिशन रेट, हम ड्रॉप आउट कर देंगे। तो ऐसा अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो हम लोग को फर्स्ट क्या आएगा मन में कि यहाँ पर रह के क्या फायदा, तो चलो हम और कहीं जाते हैं। सो दैट विल क्रिएट ए मोर टेंशन लेवल, ट्रस्ट लेवल, और कम्युनिकेट तो किसी को हम नहीं कर सकते क्योंकि कोई नहीं समझ रहा है, ना ही हम समझ रहे हैं, ना और कोई समझ रहा है, एंड यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद द जॉब। सो दिस इज वेयर the conflict level has come into the picture. Now it is up to you कि आप लोग किस conflict level अपनाना चाहते हैं and how you're going to grow, because the situation changes. Situation कभी एक जैसा नहीं रहता है, आज एक situation तो कल दूसरा situation होगा ही। तो based on the situation आप लोग देखना चाहते हैं या based on the people आप लोग judge करना चाहते हैं, that is everything up to you. So the way you take it, you will be going for functional conflicts or dysfunctional conflicts. So this all are conflicts level. So we will be continuing tomorrow again with some other topics. Okay. So hope I was able to bring the points to your knowledge. और आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो, बिकॉज आई एम ए प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, आपका कॉन्फ्लिक्ट अगर आप लोग जानना चाहते हैं, देन वी विल बी गोइंग विद द क्वेश्चनर एट द एंड, एंड आई विल हेल्प यू वेयर डू यू स्टैंड एंड वेयर यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ। So thank you so much for attending, even though you all have a busy schedule. And thank you. Okay then. Thank you, madam. Thank you, शुक्रिया। अगर ऐसा भी आप लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर है, आप लोग डिस्कस भी करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं और कुछ और स्ट्रेटेजी और कंसेप्ट लेके, और आप लोगों को कुछ भी पूछना है इस कॉन्सेप्ट में आप लोग पूछ सकते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके, थैंक यू, नमस्कार। Thank you, ma'am. Thank you very much.